Hello everyone. So our next topic of equilibrium part B is ionization of acid and bases. Strong acids like HCl, HBr, these are termed as strong. Why they are termed as strong? Because ये almost completely dissociate कर जाते हैं ions में. जैसे strong bases हैं like lithium hydroxide and NaOH. ये भी क्यों strong होते हैं? Because they ionize, ये भी completely ionize करके ions में dissociate हो जाते हैं. हमें तीन डेफिनेशंस मिली एसिड और बेसिस की. वन इज गिवन बाय आर्हेनियस, द सेकेंड इज गिवन बाय ब्रॉन्स्टेड लॉरी एंड थर्ड इज गिवन बाय लुइस. आर्हेनियस ने क्या कहा? स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट होकर जाते हैं हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन में. एंड ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, मींस जो गुड प्रोटॉन डोनर होंगे. एंड स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे और यू कैन से प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे. सो लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल of conjugate acid base pair. Suppose this is an acid. A is not any element. I have taken A जिसमें क्या है H positive ions है. Clear? So it can lose H positive ion, so it will behave as an acid. Now water will behave as a base. As we know, water is amphoteric in nature. When acid lose H positive ions, it will convert to A negative. And when H2O gains H positive ion, it converted to H3O positive. So now it has tendency to lose. So ये क्या बन गया? Conjugate acid. It has tendency to accept H positive ion, so it forms conjugate base. हमेशा याद रखना, acid से हमेशा conjugate base की formation होगी और base से always conjugate acid की formation होगी. As we know, equilibrium is always dynamic in nature. तो हमें ये देखना है कि डायरेक्शन कौन सी में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा. सो उसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे. दैट डेरिवेशन इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयोनिक प्रोडक्ट. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, मींस वाटर विद वाटर. So here water acts as an acid because it loses H positive ion. When it loses H positive ion, it forms OH negative. When H2O accepts an H positive ion, it behaves as a base and it forms conjugate acid. So how we can write the equilibrium constant, or we can say dissociation constant, product of concentration of the products upon concentration of the reactant. So नीचे water into water आएगा, उसका मैं स्केयर लिख सकती हूँ. As we know, जो वाटर है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज कांस्टेंट होगी. सो इसको अगर मैं इस साइड लेके जाऊं तो मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. सो कांस्टेंट को अगर अनदर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें देन वी कैन राइट KW. व्हाट इज KW? KW इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर which is equal to the concentration of hydronium ion and concentration of OH negative ions. Clear? So this relation you have to learn. KW किसके इक्वल होता है? Concentration of hydronium ions and the concentration of OH negative ions. If H positive की concentration OH negative की concentration के इक्वल हो, then कितनी हो? 10 raised to power minus 7. Then we will put here 10 raised to power minus 7 into minus 7 कितना आ जाएगा? minus 40. क्लियर? अगर हमारे पास देखो तीन तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं. वन इज एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन एंड न्यूट्रल. एसिडिक सॉल्यूशन कौन से होंगे? जब हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन से ऑलवेज ज्यादा हो. जो OH की ज्यादा होगी तो वो बिहेव करेगा एज अ बेसिक सॉल्यूशन. जब दोनों की सेम होगी देन इट विल बिहेव एज अ न्यूट्रल. हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो एसिड है तो सिर्फ उसमें हाइड्रोनियम आयंस है. उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस भी होंगे बट दे विल प्रेजेंट इन लेस अमाउंट. वैसे ही जैसे बेसिक सॉल्यूशन में हम ये नहीं कह सकते कि उसमें हाइड्रोनियम आयन नहीं होंगे. उसमें होंगे हाइड्रोनियम आयन भी और OH नेगेटिव आयंस भी, बट OH नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे एज कंपैरिजन टू हाइड्रोनियम आयंस. क्लियर? सो नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक इज pH. What do you mean by pH? pH क्या होता है? pH actually it is a negative logarithm of hydronium ion concentration, or you can say H positive or
H3O positive, and mathematically we can write like this: pH is equal to minus log hydronium ion concentration. अगर कोई solution neutral है तो उसमें hydronium ion की concentration कितनी होती है? 10 raised to power minus 7. So we will put in this equation. इस equation में put करेंगे, क्या आ जाएगा? pH is equal to minus log 10 की power minus 7. As you know, I told you earlier also, log a की power n किसके इक्वल होगी? n आगे आ जाता है, so we can write n log a. So वैसे ही लिखो n log a. क्लियर? सो -7 को आगे लेके जाएंगे, -7 इंटू माइनस लॉग 10. एज वी नो लॉग 10 किसके इक्वल होता है? 1 के. माइनस माइनस प्लस, सो pH की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 7. सो फॉर एसिडिक सोल्यूशन pH इज ऑलवेज लेस देन 7. फॉर बेसिक सोल्यूशन pH इज ग्रेटर देन 7. एंड फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन pH किसके इक्वल होता है? 7 के. जैसे हम pH लिखते हैं वैसे ही हम POH भी लिख सकते हैं. pH में यहाँ पे pH का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन. POH का मतलब क्या होगा? पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन. सो यहाँ पे H पॉजिटिव लिखेंगे, यहाँ पे OH नेगेटिव लिखेंगे. क्लियर? सो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन हमें पता है किसके इक्वल होती है? KW के. अभी अभी हमने ड्राइव किया. अगर मैं दोनों साइड लॉग के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, देन आई कैन राइट लाइक दिस: log हाइड्रोनियम आयन into log hydroxide ion which is equal to log Kw. Then एक और फॉर्मूला मैंने तुम्हें करवाया था, log A into log B किसके इक्वल होता है? log A प्लस log B के. फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे. log A प्लस log B किसके इक्वल आ गया? log KW के. अब हमें पता है pH इज इक्वल टू माइनस log H हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन. सो log हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन किसके इक्वल होगी? माइनस pH के. वैसे ही माइनस POH एंड माइनस PKW. माइनस को कॉमन निकालेंगे, then we got pH plus POH is equal to KW. Clear? Then pH प्लस POH किसके इक्वल आ जाएगा? 14 के, बिकॉज KW की वैल्यू कितनी होती है? 14. So these are the relations between pH and POH. Let's discuss one very important NCERT question. Calculate the pH of the sample of a soft drink. pH निकालनी है जिसकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है जस्ट हमें. pH is equal to minus log हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन. हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दी. अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? log A इंटू बी मीन्स log A प्लस log B. फिर अगेन log B के ऊपर लगाएंगे n log A. सो log 10 किसके इक्वल होता है? 1 के. सो माइनस आ गया. सो माइनस log 3.8 प्लस 3 आ जाएगा. और log 3.8 की कितनी वैल्यू होती है? दिस यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द log टेबल. माइनस 0.589. so plus minus करके you will get your answer, that is 2.42. Clear? So next we will move to acid base equilibria and the ionization of acid and bases. वैसे ही करेंगे. अब हम dissociation constant की बात करेंगे. This is a acid, this behave as a acid और this behave as a base. जब H पॉजिटिव आयन लूज करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H नेगेटिव में. क्लियर? जब H2O H पॉजिटिव accept करेगा then it forms H3O positive. So you can write K. K is a dissociation constant or you can say equilibrium constant. Equilibrium constant को कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. अब हमें पता है कि वाटर की कंसंट्रेशन तो चेंज होने वाली नहीं है. सो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, K के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी कैन राइट अनदर कांस्टेंट, दैट इज Ka. What is Ka? Ka is the dissociation constant of acids. So you can now find out directly the Ka value, which is equal to the concentration of products upon concentration of reactant. So what you can call?
Ka क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. सो एज यू कैन क्लियरली सी, जितनी ज्यादा हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा क्या होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, Ka की वैल्यू होगी. ठीक है. सो जितनी ज्यादा हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन उतनी ज्यादा Ka की वैल्यू, जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. Clear? So this point you have to learn. Very very important point. क्या है? Larger the value of Ka, higher is the concentration of hydronium ion and stronger is the acid. Clear? So Ka जिसकी जितनी ज्यादा उतनी हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. Clear? So in the next class we will discuss a degree of ionization and dissociation, and we will discuss the numericals related to degree of ionization.